اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو 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 کون؟ جی مفتی امین الدین صاحب بات کر رہے ہیں کیا؟ ہاں بول رہا ہوں۔ جی میں صادق علی انصاری بات کر رہا ہوں گجرات سورت سے۔ اور سب خیریت ہے مفتی صاحب؟ یہ اللہ کا شکر ہے۔ کچھ بات کرنی تھی، وقت ہے 10-5 منٹ؟ بولیے۔ جی میں نے آپ کی ریکارڈنگ سنی تھی ایک چینل پر، شیخ جلال الدین چشتی صاحب سے بات ہوئی تھی آپ کی 4-5 دن پہلے۔ ہاں تو بولیے۔ ہاں سنا تھا میں نے، تو میں سوچا کہ میں بھی تھوڑا سا بات کر لیتا ہوں، تو نمبر لیا تھا میں نے دوسرے سے، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ اچھا تو اس پہ مفتی صاحب میں سنی حنفی بریلوی ہوں اور میں ایک طالب علم ہوں، تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا لوگ، میں نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہے دیوبندی حضرات کی اور اہل حدیث حضرات کی، تو اس میں ہر ویڈیو میں آپ نے ویڈیو تقریر وغیرہ میں کہتے ہیں کہ یہ بریلوی جو ہے بدعتی ہے، مشرک ہے، اور وہ حدیث بھی سناتے ہیں کلو بدعت دلالہ و کلو دلالت فی النار۔ تو کیا واقعی میں حضرت کوئی ایسا بدعت کرتے ہیں کیا بریلوی حضرت؟ جی مفتی صاحب بولیے۔ مشرک کس نے کہا؟ بہت سارے میرے پاس ویڈیوز وغیرہ ہے، آپ کہیے گا تو میں ابھی واٹس ایپ پہ آپ کو بھیج دوں گا، ہے میرے پاس۔ جس نے آپ کو مشرک کہا اس سے آپ بات کریے، ہمیں تو ہاں نہیں ٹھیک کہا۔ ہے، جیسے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری کے لوگ رہتے ہیں نا، جیسے طارق مسعود صاحب ہو گئے اور بہت سارے لوگ ہیں، تو میں جی دیکھیے بولیے۔ میری بات سنیے آپ۔ بولیے بولیے۔ مسئلہ جو ہے اصولی اختلاف نہیں ہے ہمارا آپ کا۔ اچھا اصولی اختلاف نہیں ہے؟ اصولی اختلاف کہتے ہیں قائد خراب، ٹھیک ہے۔ اور فروعی اختلاف ہے جو عمل کا اختلاف ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو کچھ آپ لوگ کرتے ہیں یا آپ سے پہلے کر چکے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ناجی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے۔ سنیے حدیث آپ نے یہ پڑھی ہے؟ ہاں سنا۔ آپ اس کو مانتے ہیں حدیث کو؟ مانتا ہوں۔ تو پھر صحابہ نے سوال کیا، قالوا من اللہ یا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وہ نبی ایک کریم صلی فرقہ، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ کن بات ہو گئی نا؟ ٹھیک ہے، تو پھر کیا تو ہوا؟ اس کو آپ مانتے نہیں مانتے، ہم مانتے ہی الحمدللہ مانتے۔ مانتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، ہم تو مانتے الحمدللہ ہم بھی کہتے ہیں، آپ مبارک ہو۔ جیسے کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارا جو مسئلہ ہے یہ اصولی اختلاف نہیں ہے، عقائد کا اختلاف نہیں ہے اور مسائل کا اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مسائل کا مسائل کا نہیں، عمل کا، اعمال کا اختلاف ہے۔ جو ٹھیک آپ ہے کرتے سنیے، ہیں وہ ہم نہیں کرتے، جو تو ہم مسائل میں کرتے ہیں ہی وہ آپ عمل آ نہیں جاتے ہیں کرتے۔ نا۔ سن لیجیے، تو اس میں جو ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کا اختلاف ہے۔ بتائیے آپ، بتاؤ، اب بتائیے، آپ اپنی بات بتاؤ، ہماری بات مت بتاؤ۔ میں کیا اپنے بات، آپ کے گھر کی بات بتا دیتا ہوں نا، میں تو اپنے گھر کی کیا بات بتاؤں، آپ بتائیے۔ ہمارے تو عقیدے سب صحیح ہے الحمدللہ، آپ کے گھر کے جو عقیدے وہ درست نہیں ہے، بہت سارے عقیدے ایسے ہیں۔ ارے بھائی تو سب آدمی کہہ رہا کہ میں سچ ہوں اور حق ہوں، لیکن دلیل بھی تو ہو، دعویٰ سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں دلیل ہے نا، میری دلیل بات بہت سنو، ساری ہے، کسی کو میری بات سنو، میری بات سنو۔ سنائیے۔ ٹکنا ڈھک کے کپڑا پہننا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے۔ ہاں؟ حلال ہے۔ حلال اور حرام کس نے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اللہ نے کیا۔ تو کہاں اگر لکھا ہے کہ کوئی، سنیے میں بتا رہا ہوں، کوئی تکبر کی بنا پر کرتا ہے ٹکنا ڈھک کر کے، ٹھیک ہے نا، تو وہ حرام ہے۔ کوئی تکبر کی بنا پر کرتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ٹکنا ڈھکا رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور سنیے گا، اور جیسے کہ اگر ٹکنا اوپر رہنا ہی سنت ہے، لیکن اگر کوئی تکبر کی بنا پر نہیں کرتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، حرام نہیں ہے، حرام ہے۔ ایک حدیث چیک بھائی کر وہ لیجیے، تو ایک حرام کہیں پورا پر بھی نہیں لکھا، ماحول ہی آپ بن جھوٹ بول رہے چکا ہے نا، اس کو تکبر ہی کہیں گے نا۔ ہیں، آپ جھوٹ سنیے، آپ حدیث پہ جھوٹ بول رہے ہیں نا، حرام کہیں پر بھی لکھا نہیں ہے۔ میری بات سنو، سنائیے۔ آپ جو کہہ رہے ہو وہ بھی بات ہے، لیکن جو ماحول ہی بنا چکا ہے اور
पूरा माहौल उसी में रख गया है, तो फिर उसको क्या कहेंगे कि तकब्बुर नहीं है, घमंड नहीं है, इसको क्या कहेंगे फिर? बिल्कुल नहीं वो है तो कभी तकब्बुर। कभार है कि चलो भाई किसी वजह से ढक गया, या किसी का जो है मोटापे की वजह से गया, ढक गया, तो वो बात अलग है, तकब्बुर की नीयत भी नहीं थी जो आप कह रहे हो। लेकिन यहाँ तो पूरा माहौल ही बन चुका है कि वो ढकना ढक के पहनना। चलो एक बात तो ये होगी, दूसरी बात सुनो आप। सुनिए, अभी आप आधी रजू करके बात कर रहे हैं। अब बात अभी सुनो मेरी नहीं, अभी आप आधी बात करें मुफ्ती साहब, अभी आप आधी बात करें। आपने कहा था कि टकना ढक करके जो नमाज पढ़ता रहता है वो हराम का, तो हराम तो किसी हदीस में मैंने पढ़ा ही नहीं। या फिर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर झूठ बांध रहे, या फिर आप हवाला पेश करते हैं। हराम कहीं पर भी लिखा नहीं है। मुस्बिल तिरमिज़ी शरीफ कह रही हो आप, तालवीन आप नहीं जानते हो। मुस्बिल मन्नान मुसव्विर, जनाब वो तो हराम तो आप सुन लीजिए, हराम आपने कहा ना, तो हराम के लिए दलील देना पड़ता है। आप तो कयास करके बता रहे हैं। अरे हदीस बता रहा हूँ मैं, तिरमिज़ी हदीस वो तो बता रहे हैं, बनी इसराइल तफरकत अला सिनतैन, ये हदीस जो है ये तो तिरमिज़ी करके बताइए क्या शिद्दत है कि नहीं है? अरे आपको कितने मुस्बिल इजाजत हराम है, हराम हलाल कोई मत, ईमान बचेगा ही नहीं। कितने का हराम है? कौन से मुहद्दिस ने, सुन लीजिए, हलाल है वो हलाल क़यामत तक। तकना के नीचे जो जो रखता है बगैर तकब्बुर के, वो हराम है। किसने कह दिया? वो जरा मुझे एक हवाला तो दे दे, किसने कहा? कौन से मुहद्दिस ने कहा? क्या दलील है तकब्बुर में, ये बताओ। तकब्बुर कहते हैं, सुन लीजिए, तकब्बुर उसके कहते हैं जो दिखावे का अमल हो। जैसे कि सूरह कहफ की आखिरी आयत, सुनिए तो जवाब तो दे रहा हूँ। सूरह कहफ की आखिरी आयत के अपने मुस्बिल समझते हो, मुस्बिल समझते हो, जवाब बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, मैं बोलता हूँ, बताता हूँ। समझते हो, बोलने दीजिए, मैं बोलने दे, आपको बोलने दे रहा हूँ। समझते हो, पर इसका जवाब मुस्बिल बताए जरा, चले बताए, कितना कयास करेंगे आप? कयास करिए, बताइए। मुस्बिल समझते हो, पर जवाब दीजिए। कयास मुस्बिल नहीं, अब सुनिए, अब मैं जवाब देता हूँ। सूरह कहफ की आखिरी आयत में, हदीस को बोलो पहले। हाँ, तो मैं तो हदीस समझ रहा हूँ। हराम जैसे आपने कहा, तो इससे तो हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस है जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज करार दिया, तो उसमें आप किस को जायज करार देंगे? बहुत सारी जिनका जिक्र नहीं, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज करार दिया, तो उसमें आप क्या क्या चीज जायज करार देंगे? उसको समझो, जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा, ये हलाल हो गया। तो मतलब जो हरामकारी करता है वो जहन्नम में जाएगा, जो शराब पीता है वो जहन्नम में चला जाएगा। बिल्कुल जाएगा, जाएगा ना। जो शराब पीता है वो भी जन्नत में जाएगा ना। गुनाह कबीरा है, तो वो तो शराब पीना, जुआ खेलना। सुन लीजिए, जो शराब पीता है, जो शराब वगैरह पीता है, वो तो हरामकारी कर रहा है, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो जन्नत में जाएगा। उसका जो गुनाह का अपना जो जितने गुनाह किया अल्लाह ताला उसका गुनाह का माफ करेगा, तो फिर वो जन्नत में जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो शराब भी पीता है वो भी जहन्नम में जाएगा, मतलब आप तो अपनी तरफ तो हराम करने वाले को भी जहन्नम में ढकेल दिए। अरे भाई मेरी बात समझो, हम शराब की मतलब आप तो खुदाई का दावा करके बैठ गए। हम एक हदीस सुनाया हमने, मुस्बिल मन्ना। शराब ज्यादा हराम है बड़ी, या फिर टकलों से नीचे पजामा करना वो ज्यादा हराम है, वो बता दीजिए। क्या शराब ज्यादा हराम है जो कुरान की नस से साबित है? शराब हराम है ज्यादा, या फिर टकलों से नीचे जो टकलों से नीचे पजामा है वो ज्यादा हराम है? क्योंकि शराब की हुर्मत कुरान से बिल्कुल साबित है, नस से, कुरान की आयत से साबित है कि शराब हराम है। तो कुरान की आयत का इनकार हो जाएगा पिएगा तो? गुनाह में दोनों बराबर है। कहाँ बराबर है? यहाँ कुरान की आयत का इनकार हो रहा है, सुन लीजिए, यहाँ कुरान की आयत का इनकार हो रहा है। शराब पीने से क्यों नहीं हो रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ये कुरान की आयत नहीं पढ़ी? शराब को कोई पी रहा है तो कुरान की आयत का इनकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सूद खाओ, ढकना ढको, सुअर खाओ, शराब की सब जनाब जी, जब ये कुरान की या शराब पीने से कुरान की आयत का इनकार हो रहा है, अगर वो और टकना ढक रहा है तो कौन सी कुरान की आयत का इनकार हो रहा है? उसको हलाल समझ के कहेगा ये हलाल। यही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हलाल, वही तो मैं कह रहा हूँ, इनकार अमल से नहीं होता। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोई टकना नीचे करे, लीजिए, कहने से इनकार साबित होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हलाल कह रहा हूँ, बस वही लाने वाला था आपको। जुबान से कहने से इनकार लाजिम आता है। आप किसने कह दिया जो नीचे कुर्ता करता है, नीचे पैजामा करता है? किसने? हलाल कहा, ये इनकार हो गया। किसने कहा? किसने जबान से अपने कह दिया? चले बताइए तो एक हवाला दीजिए। हलाल कह रहा हूँ, कौन कह दिया? बता जरा, आप करो ढकना। हवाला दीजिए, हवाला दीजिए। अरे मुस्बिल, अरे हवाला दीजिए। जहाँ भी आपने कहा जबान से कह देना ये काफी है, तो जबान से कौन कह रहा है? तिरमिज़ी शरीफ। हाँ, हदीस नंबर बताइए। हाँ, चले बताए, हदीस नंबर बताइए।
मुस्बिल मन्नान हदीस नंबर बताइए, हदीस कौन तीनों। हदीस बताइए कौन सी हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की? तिरमिज़ी शरीफ जिल्द अव्वल। हाँ हदीस नंबर बताइए, हदीस नंबर कितना है? हदीस नंबर देख लो खोल के उसमें। अरे ऐसे कैसे देख लो हदीस उसमें यानी कितनी हदीस है, मैं उसको एक हदीस तीसरे खोलते सफ़े जाऊँ। पे, तीसरे सफ़े पे, किताब तहारत में तीसरे सफ़े पढ़िए, चलिए मतन पढ़िए उसका, पढ़िए हदीस पढ़िए। मुस्बिल मन्नान और अरे ये मुस्बिल मन्नान इतना ही तो अल्फाज नहीं ना, पूरी हदीस पढ़ के सुनाइए जरा सा। ये तीनों लफ्ज है और इसके अलावा चौथा कोई अरे लफ्ज नहीं। हदीस पढ़िए जनाब, हदीस पढ़िए, किस तरह बेवकूफ बना रहे आप, हदीस पढ़िए कौन सी हदीस है, अरे चलिए पढ़िए, हद दसना, चलिए पढ़िए हदीस। अरे तुमने ये कहा कि ये हलाल है, ये बाती अरे चीजों जनाब अभी इनकार आप हो गया। हदीस, मैं हदीस का मुतालबा करो, आप हदीस पे झूठ बाल के भाग रहे हैं, आप हदीस पढ़े, पूरे हदीस पढ़े। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द अव्वल। हाँ तो कहीं जिल्द भी अव्वल कुल्ला की हदीस करा है। देते। हाँ तो हदीस पढ़ो पहले, हदीस पढ़े, दलील दे रहे हैं ना, पूरी पढ़े, सिर्फ मुस्बिल मुस्बिल कह रहे हैं तो पूरी हदीस तो पढ़े। हदीस में सिर्फ मुस्बिल का ही अल्फाज है क्या? पूरी हदीस पढ़िए, तो जहन्नम का फैसला करोगे तुम, हदीस और पढ़ो, मेरे हदीस जन्नत पढ़ो, का हदीस फैसला पढ़ो, हदीस करोगे, नहीं हदीस पढ़ो, पढ़ोगे तो इधर जहन्नम का फैसला करोगे। लफाजी ना करिए, हदीस पढ़िए, लफाजी ना तीन करिए, हदीस लफ्ज पढ़िए, है उसमें, मन्नान, मुस्बिल और मुसव्विर। हदीस ये पढ़िए तीन पूरी। हदीस अपने ही मन का दो पढ़ रहा तीन हूँ मैं। अपने मर्जी का दो तीन अल्फाज पढ़ लिए, हो गया हदीस, क्या पूरी शुरू अरे से ये हदीस पढ़ के सुने हदीस ही आखिर के से? लफ्ज है, हदीस वो के हदीस अल्फाज के है, लफ्ज है देख ना, लो खोल के। तो मैं भी कह रहा हूँ हदीस के लफ्ज है, लेकिन पूरी हदीस में पढ़ने हाँ का मुतालबा कर रहा हूँ, पूरी हदीस पढ़िए। नहीं, खुलासा अपने हदीस मन का दो यही है, चार तीन अल्फाज चीजों पढ़ का लिए तो जिक्र हो है। गया इसमें, हाँ? ये अपने है मन कि का नहीं दो ये चार बता अल्फाज दो। पढ़ लिए तो हो गया, अरे ये है ऐसे कि थोड़ी होता नहीं है। है, पढ़े ये है हदीस कि पढ़े, नहीं, ये है कि नहीं है। हदीस पढ़िए, पूरी हदीस पढ़िए, मुझे नहीं अरे मालूम, ये है कि नहीं है, बस नहीं पता मुझे नहीं करो। मालूम, मुझे नहीं मालूम, पढ़िए नहीं हदीस, मालूम तो बस चुप हो जाओ। हदीस पढ़िए, तुमने भागिए मत फोन काटे, भागना तुमने नहीं, फोन काटे। हराम को हलाल कह दिया, इनकार हो गया, ईमान पैदा हो रहा है तुम्हारा। अरे पढ़ो हदीस पढ़ो, इनकार भागना मत, साबित हो भागना गया, मत, भागना मत, हदीस पढ़ो, इनकार हदीस कर पढ़ो। बैठे थे अभी हदीस हदीस का। ने कैसे मुक्ति यार, हदीस नहीं पढ़ रहे यार, अजीब इंसान हो, हराम को हलाल करा तो दे, तो यहाँ तो इनकार आपके कर सारे दिया अकाबिर ना, काफिर साबित हो गए हराम ना। का तुमने कह दिया हलाल है। हाँ तो यहाँ तो हम खुद कह रहे हैं ना, यहाँ पे तो आपके पूरे सारे के सारे फिरके तो आपके फतवे से काफिर हो गए, बचा कौन आपके पास? कोई भी नहीं बचा तब। हमारे यहाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह अहले अल्लाह सुन्नत वल जमात, अरे आपके फतवे से सारे काफिर हो गए हजरत, मैं हवाला अहले देता हूँ, हवाला सुन्नत वल सुनिएगा, जमात हम लोग हैं। सुनने हमारे की ताकत रखे मजामिन जरा पढ़ो सा। तफसीरी खिताब पे। हाँ तो लीजिए ना, मैं हवाला पढ़ रहा हूँ, अब देखिए आपके अरे अपने अकाबिर तफसीरी के बचे, खिताब पढ़ो, हमारा हम लिख रहे हैं उस पे, यही सब लिख रहे हैं आजकल, उसी पे वो पहले सब पढ़ थे। लेंगे, वो सब पढ़ लेंगे। आप ये हवाला सुन लीजिए, आप जैसा कि आपने कहा कि वो काफिर हो गया, तो ले लीजिए, तो आप अपने मसलक में छोड़े किसको, सारे तो काफिर हो गए, बचा कौन? कौन काफिर हो हाँ गया? तो आपके पूरे मसलक के आप, बल्कि आप भी काफिर हो गए, आपके पूरे मसलक के नहीं, लोग काफिर कौन हो गए। कौन 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 किस बात पे बोलो। हराम को हलाल करार दे दिया हाँ, तो ये सारे अल्लाह की काफिर हो शान है, गए, सिर्फ ये अल्लाह की शान है बस। अल्लाह की शान है ना। और अगर कोई और करे तो अब तुम कह रहे हो हलाल है, तो ये तो इनकार हो गया, हराम को इनकार हो हलाल गया ना। कह रहे हो। हाँ तश्क रसूल रशीद में रशीद अहमद खलील अहमद अम्बेडकर साहब ने किसको हलाल करार दिया है? शराब को हराम करार दिया है, हलाल झूठ करार बोल दिया है रहा हो, शराब। हो ही नहीं सकता, क़यामत की सुबह तक नहीं। हाँ तो लीजिए, व्हाट्सएप पे आ जाइए, मैं हवाला भेज रहा हूँ, हवाला पहले नोट करिए, फिर पता रजिया मैं खोलता हूँ। हाँ भेजो। आइए व्हाट्सएप पर, आइए व्हाट्सएप पे आइए। हाँ ये व्हाट्सएप पे इसने ही। शराब को हलाल करार दे दिया है, मैं इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ, पूरी इबारत शुरू से पढ़ के सुना रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे आ जाइए, ठीक है। मैं इबारत पूरी शुरू से आखिरी पढ़ रहा हूँ, तश्क रसूल खलील में सफा नंबर 119 में पूरी इबारत पढ़ के सुना शुरू से आखिरी तक। एक मर्तबा आपका जलालाबाद में गुजर हुआ, एक मस्जिद वहाँ वीरान पड़ी थी, वहाँ नमाज के लिए तशरीफ ले गए, आप वहाँ कुआं से पानी खींचा, मस्जिद में झाड़ू दी, बाद में एक शख्स से पूछा कि यहाँ कोई नमाजी नहीं, तो इसने कहा जी यहाँ सामने खान साहब का मकान है, जो शराबी भी है और अंडीबाज भी है। क्या है? शराबी और अंडीबाज भी है। अगर वो नमाज पढ़ने लगे तो दो चार आदमी इकट्ठा हो जाएंगे। आप उन खान साहब के पास तशरीफ ले गए तो रंडी वहाँ बैठी हुई थी और वो नशा में मस्त थे। आपने खान साहब से फरमाया, भाई खान साहब, अगर तुम नमाज पढ़ लिया करोगे तो दो चार आदमी जमा हो जाएंगे और मस्जिद आबाद हो जाएगी। तो खान साहब ने कहा कि मेरे से वजू नहीं होती और ना ही ये बुरी आदत छूटती है। तो आपने फरमाया, बेवजू ही नमाज पढ़ लिया करो और शराब भी पी लिया करो। क्या कर लिया करो? बेवजू नमाज पढ़ लिया करो और शराब भी पी लिया करो। अब उसने शराब पीने को क्यों जायज करार दिया? यहाँ अगर इसको साबित हो रहा है तो शराब पीना क्या है? जायज है? नहीं, इससे जायज का साबित हुआ। यहाँ पे बेवजू, यहाँ पे दो बातें कह रहे बेवजू नहीं कहा कि शराब पीना जायज है, ये तो नहीं कह रहे। तो क्या समझ के कहा था? अब क्या समझ के कहा था? क्या समझ के कहा था? अब ये तो अल्लाह जाने, वो जाने। यहाँ इबारत में क्या लिखा है? हराम की बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बेवजू नमाज पढ़ लिया करो। बेवजू नमाज होती है क्या?
बेवजू इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायज और नाजायज की बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, बेवजू नबी करीम बेवजू नमाज होती नहीं, पहला मसला ये है। दूसरा, कई सारी हदीस का इनकार है, बुखारी मुस्लिम तमाम किताबों में हदीस मौजूद है वजू के ताल्लुक से, और यहाँ पे सारी जायज और हदीसों को नाजायज की बात पशे करो, पुरदास, वो तो उसके खिलाफ अगर उन्होंने गलत तो उन्होंने हदीस का इनकार कर, जायज और हदीस के नाजायज की बात हो रही है। अभी आपने एक हदीस के लेकर के मुझे बात, नाजायज की हो रही है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। अब इसने बेवजू नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों दी, बताइए? भाई मैं कह रहा शराब हूँ पीने की इजाजत क्यों दी? वो तो जाहिल नहीं थे। कौन जाहिल थे? मतलब मौलाना खलील साहब की बात है, वो जाहिल तो वही तो कह रहा हूँ, जाहिल नहीं थे तभी तो सारा पढ़ने के बावजूद भी उन्होंने बेवजू नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? वाली बात है क्या, ये बताओ। बिल्कुल है, उन्होंने क्यों कहा कि नमाज, बात नहीं की। जब शराब हराम है, शराब हराम है तो उनको पढ़ने की इजाजत, उनको पीने की इजाजत देना ये क्या है? मैं आपको कहूँ शराब हजरत आप पी लीजिए तो आप पी लेंगे क्या? नहीं, जायज नाजायज की बात तो वही बात तो कह रहा हूँ कि मैं उसको जायज समझ के कहूंगा या फिर नाजायज कहूंगा, क्योंकि पीने वाले, जो पीने वाला है, या फिर इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक अला सहीह में मौजूद है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब पीने वाला जितना बड़ा गुनहगार है उतना ही बड़ा गुनहगार उसके साथ में बैठने वाला, बेचने वाला, सुनिए हदीस में सुन लीजिए, बेचने वाला, बनाने वाले सारे ही उतने बड़े गुनहगार है जितना पीने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल हक। हाँ तो आप ये आपके जो खलील अहमद साहब ने जो पीने का हुक्म दिया वो तो मेरी बात तो सुनो, उसी में मुलव्वस हुए ना। दीजिए जवाब दे रहा हूँ उसको। दीजिए। होता क्या है, जैसे कि एक सहाबी का वाकया है कि अल्लाह के नबी के पास खबर है कि रात को चोरी करने, ये है तुम्हें याद है? याद है, पढ़िए, बोलिए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? क्या? यानी करीब इसको नमाज, उस बुराई से रोक दे, नमाज पढ़ते रहो। ठीक है, ये नहीं कहा कि आप नाजायज काम कर रहा हो तो नमाज मत पढ़ो, नमाज ठीक है तो है। तो दे रहा हूँ, तावील उसकी की जाती है जो साफ सुथरी इबारत ना है, बिल्कुल साफ सफा इबारत है, इसमें तावील करने की गुंजाइश नहीं। पहली इबारत यह है कि नबी करीम, सुन लीजिए, यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन लीजिए, बोलने तो दीजिए। यहाँ पर आप कयास कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर, अपने अकाबिर की इबारत पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की हदीस पर कयास करके बता रहे हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज का इनकार नहीं किया। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज का इनकार करते हैं तो बात अलग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज का इनकार नहीं किया। यहाँ पे कुरान की आयत का भी इनकार हो रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सारी हदीस का इनकार करके वो कह रहे हैं कि बेवजू नमाज पढ़ लिया करो और शराब भी पी लिया करो। नहीं, इससे इनकार नहीं आता है। क्यों नहीं इनकार आता है? बेवजू नमाज पढ़ने का आपके मौलाना क्या जाहिल साहब है, वो कह रहे बेवजू नमाज पढ़ लिया करो। शराब पीना जायज है, पढ़ते रहो, पीते रहो, ये नहीं कहा, नहीं कहा उन्होंने, हो ही नहीं सकता। जनाब सुने, उसमें क्या लिखा है, इबारत में पढ़ के सुना रहा हूँ, इबारत में दोबारा पढ़ के, वो क्या कह रहे हैं कि बेवजू नमाज पढ़ लिया करो, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया करो, मतलब ये हमेशा का अमल करार दिया उन्होंने, और उसके बाद शराब भी पी लिया करो। मतलब इसमें कोई नहीं कहा कि दो दिन पी लेना, एक दिन पी लेना, आज पी लेना, कल भी पीना, वो तो हमेशा के लिए कह दे रहे कि पी लिया करो, अब बेवजू नमाज पढ़ लिया करो। इसको हकीकत में मबनी नहीं करेंगे भाई। अब एक आदमी, चलो तुम ये भी कर दो, ये भी करो, ये भी करो, चलो जब बच्चा कोई जिद करता है तो शराबी जो होता है वो कोई सही वाला अकल थोड़ी होता है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, शराबी तो कोई सही होगा, लेकिन जो हुक्म दे रहा है वो तो सही अकल है ना। ये कहते हैं कि बेवजू नमाज कर लो जायज है, शराब जायज है, तब आपका ये बातें कहना सही होती। जब उन्होंने लफ्ज़ जायज तो नहीं लिखा, हाँ ठीक है तुम ये करो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, चलो ठीक है ऐसे कर लो। अब आप बताइए, इन्होंने बेवजू नमाज पढ़ने का जो, नमाज पढ़े, सुन लीजिए, अगर वो बेवजू नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है और शराब पीने का शराब पीने के लिए कह रहे हैं कि शराब पी लिया करो, हुक्म नहीं दे रहे, सुन लीजिए, अगर बेवजू नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, शराब पीने का हुक्म दे रहे हैं, तो ये क्या समझ के दे रहे हैं? ये हुक्म उसने अपना फजूल उज्र पेश करा, तो मौलाना ने कहा या जो आप इबारत पढ़ रहे हो कि ठीक है चलो तुम ये भी कर लो, ऐसे पढ़ दिया करो, ये है हुक्म, इसको थोड़े कहेंगे। वो तो बचने का अपना उज्र पेश कर रहा था कि हम ऐसी हालत में होते हम नमाज क्या पढ़ेंगे, उसको हुक्म नहीं कहेंगे, उसको हुक्म नहीं कहेंगे आप? नहीं, ये हुक्म नहीं है। बेवजू नमाज पढ़ लिया करो, बेवजू नमाज पढ़ लिया करो, शराब पी लिया करो, ये हुक्म नहीं है। तो हुक्म तो बिल्कुल शरीयत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, ठीक है। तो हम भी बहुत सारी चीजों का हुक्म देते हैं ना, बहुत सारी चीजों का हम भी हुक्म देते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप भी देते बहुत सारी चीजों का हुक्म है।
अपने जहाँ पे पढ़ाते होंगे बच्चों को हुक्म देते हैं, फला काम करो, हुक्म देते हैं कि नहीं देते हैं? ये क्या हुक्म शरई नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये हुक्म शरई नहीं है, लेकिन आपके जो अकाबिर है ये हुक्म शरई बयान कर रहे हैं, कह रहे शराबी पी लिया करो और बेवजह नमाज पढ़ लिया करो। हुक्म दे रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे? बात कहाँ पढ़े आप? तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ऐसे कर लिया। हाँ तो यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, आप झूठ बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। रोजू की नमाज पढ़ रहे नहीं ऐसा लिखा ही नहीं कहीं पर कि आप करे चलो ये कर लिया करो। जो इबारत मैंने पढ़ के तरह वो असल इबारत है, आप तो अपनी तरफ से मनगढ़ंत इबारत बता दे। ये हुक्म नहीं है ना, जायज इसको कहा जाएगा भाई। जायज तरह जो अगर कोई कहे कि मैं अगर कहूँ कि शराब पी लिया करिए मुफ्ती साहब, तो आप पी लेंगे? अरे नहीं भाई, मेरी बात सुनो। जैसे आपका क्या नाम है भाई? सादिक अली अंसारी। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे अपने बच्चा कोई या भाई छोटा गलती करता है या मार लेता है, ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं? मार डालूंगा मैं। क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है? तो इसका क्या मतलब होता है? मैं मार डालूंगा तुझे तो कोई जरूरी नहीं, मार भी सकता है, नहीं मार सकता है कोई। हाँ कोई जरूरी नहीं, मार भी सकते, कोई जरूरी नहीं, मार भी सकते हैं। मारना, लेकिन क्या करें? मैं मार डालूंगा, हाँ तो जान से खत्म कर दूंगा, ये हुआ है। हाँ तो डरा रहे यहाँ पे किसको डरा रहे? हाँ तो ठीक है, यहाँ तो कोई डरा नहीं रहा। तंबीही अल्फाज होते हैं। हाँ तो हजरत ये इबारत पे तंबी इबारत कहाँ पर है? तंबी है कहाँ पे है? वो तो हुक्म दे रहे हो, हुक्म और तंबी में आपको फर्क नहीं समझ में आता है क्या? यहाँ तंबी कहाँ पर है? ये इसको हुक्म नहीं कहेंगे, इसको ये कहेंगे चल भैया तो तू कह रहा तू ऐसे कर ले, तो तू कह रहा चलो, वो तो उज्र पेश कर रहा है, माजूर। नहीं ऐसा कहीं नहीं है, वो तो इबारत ये जब अपलोड होगा तो लोग सुनेंगे कि आप किस तरीके से भद्दा तावील कर रहे हैं। कोई तावील का कोई गुंजाइश ही नहीं यहाँ पर। नहीं है, और मैं क्यों ताबील करूं भाई? मैं अपने आखिरत ईमान को खराब बस यही पे लाने वाला था, बस यही पे लाने वाला था, ताकि आप घुटने टेक दे तो घुटने टेक चुके हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, घुटना टेक ही नहीं सकता। टेक दिए, अभी आप कह दिए, बात खत्म हो गई। अब आप रुजू भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने कहा जो अपने आगे जाने अपने। हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह, हक तो हक है, यहाँ पे सामने वाले घुटना टेक के बात खत्म। आपकी बात हुई और मेरी बात, जो हक होगी उसको बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हक बात तो हक बात होती है, सामने वाले ठुकरा दिया। वही बात तो कह रहा हूँ कि हक बात होती है, सामने वाले ने टेक दी कुछ, बात खत्म हो गई, आके कोई बात ही नहीं करनी है, बात खत्म हो गई ना। आपने कोई उम्र पे चलो, आप तो बहस करके कोई फायदा नहीं हजरत, टेक दिया आपने, घुटने खत्म करनी चाहिए। नहीं इसको